اب تک کی تاریخ میں صرف 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جس میں سے 2 مومن اور 2 کافر ہیں۔ 2 مومن حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، یہ دونوں اللہ کے خاص بندے میں سے ہیں۔ 2 کافر، نمرود اور بخت نصر۔ جب حضرت ارمیا علیہ السلام انتظار کر رہے تھے تو ایک فرشتہ انسان کے شکل میں آیا۔ وہ فرشتہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اب تک سب کچھ برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے جسے دیکھ کر اللہ بھی بنی اسرائیل سے نفرت کرنے لگے گا۔ اگر آپ چاہو تو بد دعا کر دو، میں پوری بنی اسرائیل کو ہلاک کر دوں گا۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر ان کے اندر بھیجے گئے، ان پر تورات نازل کی گئی اور انہیں فرعون کے ظلم سے نجات ملی۔ اللہ نے انہیں من و سلوہ سے روزی دی، سمندر کو چیر کر راستہ دیا اور ہر موڑ پر اپنی رحمتوں سے نوازا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دل سخت ہوتا گیا۔ جب بنی اسرائیل کے اندر برائی بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ وہ پھر سے راہ حق پر لوٹ آئیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے پیغمبروں کی باتیں سننا چھوڑ دیا۔ جب انہیں سمجھایا جاتا وہ غصہ ہو جاتے، جب انہیں سچ بتایا جاتا وہ انکار کر دیتے۔ آخر کار ہسٹری میں ایک ایسا بھی دن آتا ہے، ایک خوفناک اور خونی دن، جب بنی اسرائیل نے اپنے اندر کے 300 اسکالرز کو صرف اس لیے شہید کر دیا کیونکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلانے لگے تھے۔ یہ خونی منظر دوپہر سے مغرب کے وقت تک چلی۔ ہر گلی، ہر چوراہا ایک بیٹل فیلڈ بن چکا تھا۔ وہ اسکالرز جو صبر اور نصیحت کے ساتھ اللہ کے احکام یاد دلاتے تھے، انہیں چوراہوں پہ مار دیا گیا، کسی کی داڑھی کھینچ کے قتل کیا گیا، کسی کو تانا دے کر پتھر سے مارا گیا، کسی کو تقریر کرتے وقت ہی خاموش کر دیا گیا۔ یہ ظلم صرف قتل تک ہی نہیں رہا، اسکالرز کے گھر جلائے گئے، ان کی کتابیں جلائی گئیں، اور جو لوگ ان کے ہم سفر تھے انہیں دھمکایا گیا کہ اگر اللہ کے دین کی بات کی تو وہ بھی مار دیے جائیں گے۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی اور انہیں ذلت اور ذلیل زندگی کے حوالے کر دیا۔ بخت نصر کو ان پر عذاب کے طور پر بھیجا، لیکن جب بنی اسرائیل نے توبہ کرنی شروع کی تو اللہ نے بخت نصر کا ان پر پہلا حملہ روک دیا۔ بعد میں ان لوگوں نے پھر سے دین میں بغاوت کرنی شروع کر دی۔ شراب پینا، زنا کرنا، سود لینا سب عام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارمیا علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل سے جا کر کہہ دو، تمہیں جو نعمتیں دی گئی تھی تم انہیں یاد کرو، تم حد سے بڑھ گئے ہو، اللہ کی عبادت کرو اور تباہ ہونے سے پہلے اپنی گناہوں کی توبہ کرو۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے 3 سال تک اللہ کے پیغام سنایا، لیکن لوگ سدھرنے والے تھے نہیں، بلکہ اور بھی بدتر ہو گئے۔ حضرت ارمیا علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اگر تم نہ سدھرے تو تم پر بہت سخت عذاب آئے گا۔ بنی اسرائیل نے ان کی بات نہیں سنی، پہلے انہیں سختی سے زخمی کیا، پھر جنجیروں سے باندھ دیا۔ اللہ نے حضرت ارمیا علیہ السلام سے فرمایا، اے ارمیا، تمہاری قوم نے حد پار کر دی ہے، میں انہیں تباہ کر دوں گا، ان پر سخت عذاب آ کر ہی رہے گا۔ تم بیت المقدس کے ایک چٹان پر کھڑے ہو جاؤ، وہاں میرا حکم تم پر آئے گا۔ ایسی قوم بھیجوں گا جو نہ عذاب سے ڈرتے ہیں نہ جنت کی امید رکھتے ہیں، وہ میری مخلوق میں سب سے زیادہ بدتمیز اور ظلم کرنے والی قوم ہے۔ بخت نصر نے بیبیلون کا بادشاہ بن کر اپنی فوج کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس وقت اس کی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ بخت نصر کے پاس لاکھوں گھڑ سوار اور فوج تھی۔ اس نے اتنے ظلم اور تباہی کی کہ لوگ اس کی زندگی کو نفرت اور سبق کی مثال کے طور پر دیکھنے لگے تھے۔ جب وہ بادشاہ تھا، یروشلم کے ایریا میں کئی انبیاء کرام اس وقت موجود تھے۔ آخر کار تباہی قریب آ گئی۔ بخت نصر نے 6 لاکھ فوج لے کر بیت المقدس کی طرف مارچ کیا۔ اس کی فوج نے پورے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اتنی بڑی فوج تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ تو ٹڈی سے بھی زیادہ ہے۔ جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے دیکھا کہ بخت نصر پورا شہر گھیر چکا ہے تو بنی اسرائیل کا بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے حضرت ارمیا علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا
कि जब तक आप राजी नहीं होंगे तब तक वो हमें तबाह नहीं करेगा, पर यह तो इतनी बड़ी फौज है, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम गुस्से या नफरत से दुआ नहीं करते थे, बल्कि बड़े अदब और समझदारी से अल्लाह से फरियाद की, ऐ आसमानों के मालिक, ये बंदा बार बार मेरे पास आता है, मैं उसके हक में गवाह नहीं हूँ। अगर बनी इसराइल के लोग आपको राजी करने वाले काम कर रहे हैं तो उन्हें जिंदा रहने दो, और अगर ये आपके गुस्से वाले काम कर रहे हैं जिससे आपको जलाल आता है तो उन्हें हलाक कर दो। जैसे ही उनकी दुआ का आखिरी जुमला जुबान से निकली, आसमानों से बिजली मस्जिद पर गिरी। ये मंजर देखकर हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम रोने लगे। वो समझ गए अब अजाब का वक्त आ गया है। बख्त नसर के शहर में घुसने से पहले ही हजरत इर्मिया अलैहिस्सलाम यरूशलेम छोड़कर जंगलों में चले गए। जंगल में वो अल्लाह की याद में वक्त गुजारने लगे। इसी बीच बख्त नसर पूरी कुव्वत के साथ पूरे शहर को घेर लिया और आग लगा दी। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ पाक मस्जिद भी तबाह कर दिया, जो बनी इसराइल के लिए सबसे मुकद्दस जगह थी। मस्जिद में सिर्फ उन लोगों को जिंदा छोड़ा गया जो आइडल वर्शिप करने पर राजी हो गए। बाकी लोगों को या तो जिंदा जला दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। कुछ लोगों को गुलाम और कैदियों की तरह ले जाया गया। बख्त नसर ने अपने फौजियों को हुक्म दिया, अपना आर्मर उतार दो और मस्जिद को मिट्टी से भर दो। उसके वफादार फौज पूरी मस्जिद पर मिट्टी डालते रहे जब तक वो पूरी तरह मिट्टी के नीचे दफन नहीं हो गई। यरूशलेम 70 साल तक उजड़ा हुआ पड़ा रहा। कुछ रिवायतों के मुताबिक 8 लाख से लेकर 20 लाख तक बनी इसराइल के लोग उस हमले में मारे गए। यूफ्रेट्स नदी में खून 1 हफ्ते तक बहता रहा। जब बख्त नसर यरूशलेम में खून बहा चुका था, तमाम कैदियों को बेबीलोन ले जाया गया। उसने 70,000 बनी इसराइल बच्चों को कैद कर लिया। जब जंग के माल का तकसीम हुआ तो अलग अलग इलाकों के गवर्नर ने कहा, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें यह कैद किए गए बच्चे दे दो। हर गवर्नर को 4 बच्चे दिए गए। जो लोग कैद हुए थे उनमें से 1/3 को गुलाम बना दिया गया, 1/3 को मार दिया गया, बाकी को जिंदा ले जाकर कैदियों के शेल में रखा गया। बख्त नसर ने यरूशलेम से सारी पाक और मुकद्दस चीजें भी लूट ली। इन सब चीजों को बेबीलोन ले जाकर उसने अपने शहर को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट और ताकतवर शहर बनाया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी उन लोगों में शामिल थे जो कैद करके बेबीलोन ले जाए गए। वहाँ वो अपने 2 साथियों के साथ इबादत में मशगूल रहे। बख्त नसर के आसपास के राजा, अमीर और काफिर सब परेशान हो गए। उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया, हम तो बुतों की पूजा करते हैं, लेकिन दानियाल और उसके साथी खुल के अपने तरीके से इबादत करते हैं, बुतों को सजदा नहीं करते। ये लोग अवाम के लिए बुरा मिसाल बन रहे हैं। लोग भी इनका तरीका देखकर इनके साथ शामिल हो सकते हैं। वो सब मिलकर बख्त नसर के पास पहुँचे और कहा, आपने दानियाल के रब की सबके सामने तारीफ की, आपने उसके इल्म का इकरार भी किया, लेकिन बख्त नसर ने उनकी बात काट दी और कहा, मैं तारीफ कैसे न करता। उसके रब ने मुझे एक ऐसा राज बताया जो किसी को नहीं पता था। लेकिन काफिर अमीर ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर दानियाल और उसके साथी ऐसे ही खुलेआम अपने रब की इबादत करते रहे और बुतों को सजदा न करते रहे तो लोग हमारे मजहब से दूर होने लगेंगे। आप तो अब अपने बाप दादा की भी तौहीन कर रहे हैं। ऐ बादशाह, हमारा यह मशवरा है कि आप एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनाओ और उसे शहर के बीचों बीच में रखो। उस मुजस्समे के मुंह में एक तुरही लगाओ। हर मुकर्रर वक्त पर वो तुरही बजाई जाएगी और जिसे भी उसकी आवाज सुनाई दे उसे उस मुजस्समे को सजदा करना होगा। इससे हम समझ जाएंगे कौन वफादार है। बख्त नसर को यह आइडिया पसंद आया। उसने एक बहुत बड़ा मुजस्समा बनवाया। मुजस्समे के आसपास पहरे लगाए। वक्त पर जब तुरही बजती थी सब लोग सजदा करते, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 2 दोस्त खड़े रहते, सजदा नहीं करते। लोगों ने इस पर बातें बनाना शुरू कर दी और उन्होंने बख्त नसर के पास फिर से शिकायत लगा दी। आखिरकार बख्त नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम को बुलाया और गुस्से से कहा, जब सब सजदा कर रहे हैं तो तुम शहर में ऐसे ही घूम रहे हो। दानियाल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो आप चाहते क्या हैं? बख्त नसर ने तैश में कहा, तुम्हें भी सजदा करना होगा। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते। जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदा से इनकार किया, बख्त नसर
ने कहा, अगर तुम मेरी बात ना मानोगे तो मैं तुम्हें आग में जला डालूंगा। बख्त नसर ने आग से भरा हुआ एक बड़ा गड्ढा तैयार करवाया। दानियाल अलैहिस्सलाम बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी आग से डर नहीं है। जिसने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा बनाया था वही हमें भी बचा लेगा। दानियाल अलैहिस्सलाम का इतना यकीन देखकर बख्त नसर गुस्से में आग बबूला हो गया। बख्त नसर ने हुक्म दिया, आग और तेज करो, दानियाल और उसके दोस्तों को बांध कर उसमें फेंक दो। जब दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके 2 साथियों को आग में डाला गया तो जिस कमांडर ने उन्हें आग में फेंका था वो खुद जल गया, लेकिन दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी आग के बीच में खड़े थे, हाथ खुले हुए थे और दुआ कर रहे थे। आग के अंदर एक एक्स्ट्रा शख्स भी था, एक फरिश्ता जो दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके दोस्तों के लिए खाना और जरूरत का सामान लेकर आया था। यह देखकर बख्त नसर को यकीन हो गया कि वो दानियाल अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बख्त नसर ने आग के पास से पुकारा, दानियाल, तुम्हारा अल्लाह तो वाकई अजीम है। आग हमें जला देती है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होता। हम तुम्हें आग से नहीं निकाल रहे, तुम खुद ही बाहर आ जाओ। जब दानियाल अलैहिस्सलाम आग से सलामत बाहर आए तो बख्त नसर ने तस्लीम किया, अब मुझे समझ आ गया है तुम्हारा अल्लाह हर चीज पर कादिर है, वो तुम्हें किसी और के आगे झुकने नहीं देता। आखिरकार बख्त नसर ने फैसला किया, अब तुम अपने तरीके से इबादत कर सकते हो। लेकिन असल में दोस्तों, बख्त नसर चाहता भी तो दानियाल अलैहिस्सलाम को रोक नहीं सकता था। कुछ महीने गुजरने के बाद फिर लोग आपस में बात करने लगे, कितना अजीम है दानियाल का अल्लाह। यह बात लोगों में इतनी फैल गई कि हुकूमत में बेचैनी होने लगी। एक काउंसिल मीटिंग बुलाई गई। काउंसिल ने बख्त नसर से कहा, जब दानियाल और उसके दोस्त आग से निकले तो ना उनके हाथ बंधे थे, ना उनका एक बाल भी जला था। यह कैसे मुमकिन है? क्या अजीम है दानियाल का रब। बख्त नसर फिर से उलझन में पड़ गया और पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? काउंसिल ने कहा, जो भी तुम्हारे बनाए हुए बुतों को सजदा नहीं करेगा, चाहे किसी भी कौम का हो, उसे भूखे शेरों के गड्ढे में डाल दिया जाए। दानियाल एक जादूगर है, बस फर्क यह है कि वो यहाँ के जादूगरों से ज्यादा ताकतवर है। उसने आग रोक दी लेकिन उसका भूखे शेर पर जादू नहीं चल पाएगा। उस वक्त बेबीलोन जादू का मरकजी शहर था। बाबिल यही वह जगह थी जहाँ फरिश्ते हारूत और मारूत ने लोगों को जादू सिखाया था। बख्त नसर दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को फिर से बुलाया और उसने कहा, मैं तुम तीनों को एक गड्ढे में डाल दूंगा अगर तुमने मेरे बुतों को सजदा नहीं किया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने सजदे से इनकार कर दिया। आखिरकार दानियाल अलैहिस्सलाम को अकेले भूखे शेर के गड्ढे में डाला गया। उनको गड्ढे में डालने के बाद गड्ढे का मुंह बंद कर दिया गया ताकि कोई भी अंदर देख ना सके। गड्ढे में जाते ही दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ शुरू कर दी। 2 भूखे शेर उनके पास आए, अपने जिस्म को उनके जिस्म से रगड़ने लगे और जुबान से उनके जिस्म को चाटने लगे जैसे वो बरकत लेने आए हो। दानियाल अलैहिस्सलाम 5 दिन तक उन शेरों के साथ ऐसे ही उस गड्ढे में रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने एक और नबी इर्मिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ दानियाल के पास और उसे खाना दो। जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने इर्मिया अलैहिस्सलाम को देखा तो अल्लाह का शुक्र करते हुए कहा, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो अपने याद करने वालों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, जो उम्मीद रखने वाले की दुआ कबूल करता है, जो नेक अमल का बदला नेकी से देता है और सब्र करने वालों को निजात अता करता है। फिर कई दिन गुजर जाने के बाद गड्ढे का ढक्कन खोला गया। दानियाल अलैहिस्सलाम अब भी दुआ में मसरूफ थे और दोनों भूखे शेर उनके पास खेल रहे थे। जब बख्त नसर ने यह सब देखा तो वो अपने लोगों पर बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा, इसके बाद अगर किसी ने दानियाल को नुकसान दिया तो मैं खुद उसका सर कलम कर दूंगा। बादशाह ने कौंसिल से कहा, मुझे इस शख्स के रब के साथ झगड़ने पर मजबूर मत करो। अब बख्त नसर का दिल और ज्यादा क्यूरियस हो गया। उसने दानियाल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने ऐसा क्या पढ़कर शेरों को इतना मुतासिर कर दिया? मुझे बताओ, तुम अपने रब से कैसे बात करते हो? दानियाल अलैहिस्सलाम ने वही दुआ दोबारा पढ़ी। उस दुआ ने बख्त नसर के दिल पर गहरा असर डाला। अब बख्त नसर उन पर और ज्यादा यकीन करने लगा। एक दिन तारसुस नाम के शहर में कहत पड़ गया। लोगों ने बख्त नसर से कंप्लेन की तो उसने दानियाल अलैहिस्सलाम को तारसस भेज दिया। जब लोगों ने देखा कि दानियाल अलैहिस्सलाम के आते ही बारिश होने लगी तो कई लोग उन पर ईमान ले आए।
हालांकि बख्त नसर ने दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ बहुत नरमी और इज्जत का रवैया इख्तियार किया, लेकिन उसने कभी अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। उसकी एरोगेंस और उसके जाहिल मशवरान ने उसे हकीकत कबूल करने से रोक दिया। आखिर में बख्त नसर का अंजाम भी नमरूद की तरह हुआ। एक छोटी सी मच्छर ने उसका काम तमाम कर दिया। जैसे फिरौन को ईमान लाने से हामान ने रोका था, वैसे ही बख्त नसर को उसके बेवकूफ मशवरान ने रोका। या अल्लाह, हमें उन झूठे दोस्तों से बचा ले जो हमें तुझसे दूर करते हैं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।